So first of all, write the chapter's name, matter in our surrounding. In chemistry portion of your ninth science syllabus, this is the first chapter of your chemistry. That is matter in our surrounding. So basically, what does it mean? What does it mean? Matter in our surrounding. Basically, here surrounding means the environment you live. Surrounding means the environment you live or any organism is living. Whatever the organism, they are living in their habitat, they are living in their environment, they are living in their surrounding. Yes, means if this is the organism, if this is the component of that substance that we are talking about, and the part surrounding us, that is the environment or the surrounding in which, on which or to which they interact. Clear? So basically in this chapter we will study about in our surrounding what are the forms of substance or the particles that we are interacted in our day-to-day life, like air, like soil, like fire, and many more things. Okay, so basically matter आप में से कोई explain कर सकता है कि what do you mean by matter? Sir, anything that has mass, volume, and occupies some space is known as matter. हाँ, तो मीन्स ऐसी सब्सटेंस जिनके पास अपना खुद का मास हो, ऑब्वियसली मास होगा तो वॉल्यूम में आएगी, मतलब कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो अपने सराउंडिंग में आपके अलावा बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, लाइक एयर है, लाइक सॉइल है, लाइक माइक्रोब्स है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आगे ना, अरे बोलो, वाटर है, ऑल दी ज्यादा फॉर्म्स ऑफ मैटर, क्योंकि उनके पास कुछ मास है, कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। लाइक वी हैव मैटर्स के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, आगे ना, इसको हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है अनुश्री? इज एवरीथिंग ओके? हाँ सर, तो compressibility, density, वो सब physical properties हैं। वो सारा, हाँ, मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी हियर मीन्स फिजिकल मीन्स विच यू कैन फिजिकली विजिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिजिकली मीन्स जो आप विजुअली देख सकते हो, केमिकली आप देख नहीं सकते हो नॉर्मली, अनएडेड आई या नेकेड आई से आप देख नहीं सकते। You have to see, you have to observe with the help of microscope. Means physically in normal condition you cannot see all those things. That is the physically, like you can जिसको आप feel कर सकते हो, जिनको आप touch कर सकते हो, that is the physical means ना। तो physical properties के हिसाब से हम इस matters को divide करते हैं respective अलग अलग classes में, like we have solid, like we have liquid, like we have gases. Okay, और फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे जो आपको दिखता नहीं, लाइक वी हैव मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर होती है और एटम्स वगैरह, हम लोग इस पे बात करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैटर टॉपिक लिखिए और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। एनीथिंग that occupies और नोट्स आपको बनाना है, ठीक है? तो मैं नोट्स चेक करने वाला हूं। एंड हैज सम मास, ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज मैटर। व्हाट वी कॉल देम? Sir, matter. Matter. For example, like we have air, like we have water, yes, hydrogen, like we have oxygen. सर इसकी जगह सीधे सीधे एलिमेंट्स भी नहीं लिख सकते क्या? या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह सीधे एलिमेंट्स नहीं लिख सकते? आप H2 लिख सकते हो, O2 लिख सकते हो, नहीं सर, बट हम मतलब पूरा एग्जांपल में जैसे एयर, एलिमेंट, वाटर। आप एलिमेंट नहीं लिख सकते, एलिमेंट नहीं लिख सकते। ओके सर। Okay, so we have air, water, we have hydrogen, we have oxygen, and one thing is that you have remembered that sugar, what is the poem? Johnny, yes,
No. Johnny, yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. So yeah, here we have sugar. Many of you are interested in sugar, yes or no? Some of you is interested with sands, जिससे आप लोग खेलते हो, बालू बोलते हैं ना, sand. Yes or no? Yes, So sir. all these are etc. All these are the forms of matter. Getting my point? Yes, sir. Like we have silver, like we have steel, all are different forms of matter. All are different forms of matter. Is it clear? If we analyze any substance or any matter, you will observe that it is somehow or anyhow made up of smallest form, other small form. Yes or no? Those are the particles. Those are the unit of matter. Yes or no? So we can say matter is made up of smaller particles. Clear hai? So matter can be converted into different form. If we are considering in physical sense, like we have water, like we have liquid, solid, and gas. If we heat water, it will evaporate. Yes or no? Then it will form water vapor, then gases. So heat करने से वो वेपराइज हो सकता है. वेपराइज कब होगा? देखो, जब भी आप किसी चीज को हीट करते हो, किसी लिक्विड को हीट करते हो, फॉर एग्जांपल आप वाटर को हीट करते हो, वो कब बॉईल करना शुरू करेगा? क्योंकि जब वो बॉईल करेगा ना, लाइक अगर आपने कभी अगर देखा होगा, फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर आपके पास, ये कंटेनर है और नीचे से आपने बर्नर लगा रखा है या गैस जल रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ही वाटर बॉईल होना शुरू होता है. अगर इसके ऊपर आप कुछ ढक के रखोगे, कोई कवर से कवर अप कर रखोगे, तो कुछ देर बाद ये कि ना ढक्कन हिलने लगता है. क्यों? कि नीचे से जो वाटर वेपर है ना, वो प्रेशर एग्जर्ट करता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप सब में इस बात से फेमिलियर है? Yes. ये जब बॉयल जब होगा ना, जो अच्छा जिस इन्वायरमेंट पे रहते हो, उस एयर का, उस इन्वायरमेंट का कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा. तो आपका वो लिक्विड या वाटर वो जब बॉयल होना शुरू होगा, जब आपका वेपर प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी वो बॉयल होना शुरू होगा. उससे पहले वो बॉयल नहीं आए, उसमें बॉइलिंग नहीं आ सकती. कुछ बात समझ में आ रही है? Yes. हेलो? हाँ. सो अगर आपके पास आइस है, आपके पास बर्फ है, उसको आप क्या करोगे? हीट करोगे तो मेल्ट होगा, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. उसको आप अगर और हीट करोगे तो वाटर वेपर, देन फाइनली वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. उसी तरीके से गैस को कंडेंस करोगे तो बन जाएगा लिक्विड. देन गैस उस लिक्विड को फिर वापस फ्रीज करोगे, इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड. तो इस तरीके से मैटर को हम लोग अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय हम नहीं कर सकते. ये सिर्फ एक फॉर्म से अनदर फॉर्म पे चेंज होते हैं. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir, but doubt. Yes. आस्क मी. सर मतलब आज जब मैंने चैप्टर पढ़ा था तो मुझे एक डाउट था कि जो उसमें दे रखा था कि गैस जो होती है उसको अगर आप मतलब प्रेशर के साथ एक्सर्ट करोगे तो मतलब एक कंटेनर में, तो वो लिक्विड बन जाती है, लेकिन फिर लिक्विड से सॉलिड क्यों नहीं बनती? मुझे वो समझ नहीं आ रहा. जब उसको आप फ्रीज करोगे ना, तो फ्रीज करने के लिए एक तो आपको प्रेशर, अच्छा फ्रीज करने के लिए क्या है ना कि आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ता है. हाँ समझ में आ सर, रही? लेकिन नहीं, मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा. मतलब गैस से लिक्विड हम लोग सीधा सीधा प्रेशर से भी कर सकते हैं, उसके लिए टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती ना. तो वैसे ही लिक्विड से सॉलिड क्यों नहीं कर सकते? लिक्विड से सॉलिड करने के लिए जो उसके देखो, सॉलिड में क्या होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज सॉलिड ना, तो सॉलिड में आपस में इसमें पार्टिकल्स होंगे. तो सॉलिड जब बनता है जब उसके आपस में फोर्स ऑफ जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज कम्पेयर टू गैसेज. तो ऐसा हो पाएगा तभी ये सॉलिड में कन्वर्ट हो पाएगा. इफ इट इज नॉट हैपनिंग, देन वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता. क्लियर है? और टेम्परेचर भी कम होना पड़ेगा. ओके. ठीक है. तो ये आगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां पे और मालूम चलेगा किस तरीके से हम लोग इस मेथड के अलग अलग फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं. क्लियर है? यस सर. हाँ. तो मैंने क्या बोला? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास दैट विल बी कॉल्ड एज मैटर. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड एटसेट्रा. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा.
मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, क्लियर, और ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में है कि इट हैज 3 स्टेट्स, मैटर के 3 स्टेट्स हैं, लाइक वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इट हैज 3 states which can be interconvertible. Into each other. Ravi, everything okay? Yes, सब ठीक sir. है? Yes, sir. Into each other by applying pressure. And change in temperature. तो टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से हम इसके अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर है. सबने लिखा क्या? Yes, sir. हाँ, तो देखो, जब भी आपको किसी गैस को या किसी लिक्विड को आपको इवापोरेट करवाना है या गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट करना पड़ेगा. बात समझ रहे हो क्या? अगर आप चाहते हैं कि उसको सॉलिड में कन्वर्ट करो तो आपको फ्रीज करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा. फ्रीजर में फ्रीज क्यों होता है? क्योंकि वहाँ उसका टेम्परेचर काफी कम होता है. क्लियर है? वैसे कोई लिक्विड इवापोरेट कब होगा? जब उसको आप टेम्परेचर दोगे, या किसी गैस को आप लिक्विफाई कब कर पाओगे? जब उसको प्रेशर अप्लाई करोगे. क्लियर है? जो आपके पास सिलेंडर होती है तो वो हाई प्रेशर पे होती है. अगर उसके आप जो उसका नोजल है, जो उसका वाल्व है, उसको खोल देने से वो आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो गैस के फॉर्म में इवापोरेट कर जाएगा. बात समझ रहे हो? हाँ हर्ष, वो Yes, sir. इवापोरेट निकल जाएगा. तो उस पर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे आप तो ही वो लिक्विफाई हो पाएगा. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एलपीजी. क्या मतलब इसका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. हाँ, एक होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. These are the kind of fuel. Should I move to next? Yes, sir. So इसको कन्वर्ट करने के लिए, मैटर को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी. लाइक वी हैव इवापोरेशन, लाइक वी हैव कंडेंसेशन, लाइक वी हैव फ्रीजिंग, लाइक वी हैव सब्लिमेशन. क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम इन सारी चीज के बारे में बात करने वाले हैं. तो पहले हम लोग बात करेंगे क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर जो है उनके पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. क्लियर? In next step, in next point, we will discuss about, in next topic, we will discuss about different states of matter and their properties like solid, liquid and gas. Next आपके पास inter conversion of matter. क्लियर है? जैसे आप मेल्ट करोगे, लाइक आप फ्रीज करोगे, लाइक आप बॉयल करोगे, लाइक यू विल इवापोरेट. इवापोरेट कब होगा? जब उसको आप हीट करोगे. देन फिर वापस लाने के लिए कंडेंसेशन करना पड़ेगा. देन फाइनली हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ. सो अगर हम लोग बात करें मैटर के बारे में, कुछ एंशिएंट टाइम्स की बात करें, जो कुछ एंशिएंट साइंटिस्ट थे, तो ह्यूमंस के अंदर ये एबिलिटी होती है ना, कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है, और आपके बारे में आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. लाइक आप लोग हो,
तो आप जब खाली बैठे हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ नटखट वाली हरकतें चलती रहती है। लाइक हर्ष है, लाइक श्रेयांश है, आप सबके अंदर कुछ ना कुछ एक सोच चलती रहती है कि ऐसा करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। तो उसी तरीके से जो आपका एंशियंट कुछ साइंटिस्ट वगैरह थे, तो वो लोग ये एक इंटरेस्ट था उसको, उन लोगों को सराउंडिंग में एक इंटरेस्ट था कि हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करें, मतलब इन चीजों के बारे में स्टडी करें, या कि क्या होता है, कैसे होता है, किन चीजों से बनता है। तो एक आपने टर्म सुना होगा पंच तत्व, क्या नाम सुना होगा, कि जो जो भी चीज बनी है इस यूनिवर्स पे, जो भी चीज है वो किससे बनी है? हेलो, 5 एलिमेंट्स के। 5 एलिमेंट से। उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं। हाँ जी हर्ष। तत्व। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसमें एयर इंक्लूड होती है, अर्थ एयर होती है, वाटर स्काई। फायर एयर वाटर, अर्थ स्काई। फायर हाँ, ये वाटर अर्थ इनको बोलते हैं स्काई। पंच पंच तत्व बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन ये तो आपके एंशिएंट साइंटिस्ट थे। तो जैसे फिर कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा कि जब इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, इनका अलग अलग बेसिस हो सकता है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहला बात करेंगे हम लोग इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? इसमें पहला पॉइंट, इसके अंदर पॉइंट डाल के लिखिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या हुआ। क्लियर है? सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब आप अपना उसको खुद करना, इस तरीके से करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दैट इज द फिजिकल। फिजिकल मीन्स दैट फिजिकली यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर, मीन्स आपको ऐसा खुद जो दिखने वाला, जो फील करने वाला चीज हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल। क्लियर है? साइज कलर वैसे। हाँ। सो ऑन द बेसिस, किसी को डाउट है क्या? अरे बोलो। नहीं सर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर, ये वो वाला मैटर नहीं जो आप लोग में आपस में अपने अपने बीच में होता है, सर ये हमारा मैटर है, ये हम पे छोड़ दो। समझ रहे हो ना? ये केमिस्ट्री वाले मैटर की बात कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर इज डिवाइडेड इनटू और वी कैन से क्लासिफाइड इनटू किस किस फॉर्म में? एनीवन? Solid, liquid and gas. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? याद रखने के लिए आप SLG बोल सकते हो या LSG बोल सकते हो। अरे हाँ कि ना? Yes sir. यस सर। LSG का मतलब क्या? करेंटली आप लखनऊ सुपर जॉइंट से याद रख सकते हो। अरे बोलो। यस LSG का सर। मतलब लखनऊ सुपर सुपर जॉइंट। लिक्विड लेकिन सॉलिड गैस। हाँ, अभी कोई है ना IPL टीम, अगर किसी में से आपको इंटरेस्ट है तो हियर इट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। कोई दिक्कत यहाँ तक? No sir. ये पहला हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है आपके पास? दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। इट विल बी बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical properties. So it is chemical classification. So on the basis of chemical properties, matter is classified properties. Sir आपने basis of 2 बार लिख दिया। Okay. On the basis of chemical properties,
matter is classified into, बोलिए, जैसे कि एलिमेंट्स, अरे बोलो, जैसे कि कंपाउंड्स and Mixtures. mixtures. Are you getting my point? Yes, sir. Hello guys, are you getting my point? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो। हाँ, अगर आप इनका एक चार्ट बनाओगे, अगर आप इनका एक टेबल बनाओगे, एक फॉर्मेट बनाओगे, you will see that. Should I move to next? Yes, sir. Everyone done? Yes, sir. Sir, one second. Sanvi, done? Janvi, Arnab, where are you? Sir, done. Janvi and Arnab, you are not seeing the class? Hello, Arnab and Janvi, are you hearing me? Yes, sir. Can you please switch to camera? 1 minute. कैमरा ऑन करने से फायदा ये होता है ना, हमें मालूम चलता है कि क्लास में कौन बच्चा एक्टिव है, कौन नहीं है ना। ओके, तो आप ध्यान रखें कि मुझे बार बार कैमरा के बारे में बोलना ना पड़े, इससे फायदा आपको होगा ना, इससे मैं आप पे ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ। क्लियर है? कैमरा ऑन Yes, करने sir. से मुझे फेस विजिबल होता है कि आप क्लास में ही हो। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में। तो मैटर को बेसिकली हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एक तरफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी तरफ केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपके पास आता है सॉलिड आता है, आपके पास लिक्विड आता है, आपके पास गैस आता है। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग दो सब ग्रुप में बांटते हैं, एक तरफ होता है आपके पास मिक्सचर, दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? मिक्सचर में आपके पास क्या होएगा? होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। वहीं पर आप प्योर सब्सटेंस में हम क्या बात करेंगे? कंपाउंड्स। जैसे आपका नेक्स्ट चैप्टर है कि जो आपने जिस मैटर के बारे में आपने स्टडी किया है, क्या वो प्योर है क्या? ये आपके एज अ क्वेश्चन आपका एक चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट चैप्टर यही है ना केमिस्ट्री का, इज मैटर इन आवर सराउंडिंग इज प्योर। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्योर है या नहीं। अरे बात समझ में आई? फिर जब प्योर है तो प्योर को आप किस तरीके से देखते हो? आप एटम्स में देखते हो, एलिमेंट्स में देखते हो, मॉलिक्यूल्स में देखते हो और कंपाउंड्स में देखते हो। अरे हाँ कि ना? अभी ये लिखना नहीं है, जो मैं ये तीसरा स्लाइड आपको भी लिखना नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास सॉलिड है, आपके पास लिक्विड है, आपके पास गैस है। अरे बोलो ना। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग यहाँ बात करेंगे, अभी लिखना नहीं है किसी को भी, मैं अलग से इसको बनाऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास मिक्सचर है और आपके पास क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ये इसका मतलब क्या है? प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में आपको दो मिलेगा, एक मिलेगा होमोजेनस मिक्सचर, एक मिलेगा आपको हेटेरोजेनस मिक्सचर। अरे आप सब क्या इन सब बातों से फेमिलियर हो, हाँ या ना? Yes. हाँ, अगर प्योर सब्सटेंस की बात करोगे, प्योर सब्सटेंस में आपके पास क्या क्या आएगा? अभी कुछ लिखना नहीं है किसी को। एक तरफ कंपाउंड्स आएंगे, अरे क्या आएगा? एक तरफ कंपाउंड्स आएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा? एलिमेंट्स आएगा। अरे बोलो। एलिमेंट्स में हम लोग एलिमेंट्स भी फिर फर्दर आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, दैट इज वी हैव मेटल्स, वी हैव नॉन मेटल्स। बोलते हैं ना कि तू मेंटल है, क्या बोलते हैं? कि तू मेंटल है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल नहीं, नॉन मेंटल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? नॉन मेंटल। मतलब यहाँ पे बात करेंगे नॉन मेटल। तीसरा क्या आपके पास? मेटलाइट्स। मेटलॉइड। मेटल्स क्या होती है? मेटल्स क्या होती है? हाँ सर मेटल सिर्फ मेटल होते हैं और नॉन मेटल सिर्फ मेटल होते हैं। क्लास 8 में आपने क्या पढ़ा? सर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, जैसे कि सोनरिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। हाँ, अगर सबसे अच्छा डेफिनेशन की बात करो ना, सबसे अच्छा डेफिनेशन की बात करो जिससे आप सामने वाले को बताओगे, तो सामने वाला ये कहे कि हाँ ये बंदा पढ़ने वाला है, दिस स्टूडेंट इज अच्छा मेहनती है, पढ़ने वाला है। मेटल्स में एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको हमेशा याद रखना है। मेटल्स आर नोन बाय देयर प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन।
मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर, कौन? हमें मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ध्यान रहे। अरे बात समझ में आई? हाँ और सर, आपने मेटल जब जब लिखवाया था। मेटल मेटल जब जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हमेशा M प्लस बनाता है, चाहे M डबल प्लस बनाए या M सिंगल प्लस बनाए, या मतलब मेटल्स पे चार्ज आएगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन कट जाए उसको केटाइन बोलते हैं। अरे कटा हुआ आयन को क्या बोलते हैं? केटाइन बताए। बोलते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज आए तो क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। क्या नहीं। ये सब बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, अगला आपके पास है नॉन मेटल्स। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला हो तो इसका मतलब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर चार्ज नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? तो lose. नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, इसलिए जब एलिमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए इसलिए क्या बोलते हैं? उन्हें एनाइन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? एनाइन। एनायन। एनाइन। सर एक और सवाल सब, पूछूं? पहले मुझे लेट मी कंप्लीट देन यू गोना आस्क। नेक्स्ट आपके पास मेटलाइट। मेटलाइट क्या होती है? जो दोनों की प्रॉपर्टी रखती है। अरे हम सर इधर का ना उधर का, हम बीच का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को? मेटलाइट्स बोलेंगे। मेटलॉइड्स। मींस वो कभी मेटल की तरह बिहेव करेगा, कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मेटलाइट्स। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस सर। प्योर और कंपाउंड, कंपाउंड इम्प्योर होता है क्या? ये बहुत बड़ा पिटा करूंगा। जब प्योर सब्सटेंस आ गया इसमें अब इम्प्योर की बात करेंगे ही नहीं हम। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिपीटिंग जो एलिमेंट जो यूनिट होता है वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। अगर आप बात करोगे सोडियम की, सोडियम का आपने बार देखा है? यस सर। उसके सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या होंगे? सोडियम होंगे। अरे बोलो ना। यस सर। और कंपाउंड में क्या होगा? जैसे H2SO4 है, ये एक प्योर सब्सटेंस में अच्छा से वैसे। कंपाउंड है, तो इसमें हाइड्रोजन भी आ गया, इसमें सल्फर भी आ गया, इसमें ऑक्सीजन भी आ गया। हाँ हाँ सर, याद आ ओम गया, याद काकड़े, आ मेरी बात समझ में आई? हेलो गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. आर यू अंडरस्टैंड? आकाश सिंह, यस सर। आपका Yes, चेहरा sir. नहीं दिख रहा है ना? ओके। अरुणा बेटा, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। श्रेयस ने कैमरा बंद कर लिया। व्हाट डज इट मीन? गया। अरे सर 2 मिनट के लिए बस। 2 सेकंड के लिए भी टाइम नहीं हमारे पास। सर हाँ अनुश्री, पानी पी रहा था। नॉट एन इश्यू। जानवी, एवरीथिंग ओके? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो हम लोग छोटा सा एक चार्ट बनाते हैं। वो फ्रूट चार्ट नहीं ना, वो फ्रूट चार्ट नहीं। तो पहले आपको ऊपर में लिखना है मैटर। ठीक है? मैटर के बाद सर ये नोट डाउन करना है। हाँ अब करना है। ओके। हम्म, तो हमने बात किया अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अरे बोलो ना, अभी तो कुछ देर पहले बात किया हम लोगों ने। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। हियर वी हैव केमिकल क्लासिफिकेशन। अरे कौन सा? साथ साथ में केमिकल बोलना, क्लासिफिकेशन। साथ साथ में बोलने की आदत डालोगे ना रवि कौशिक, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। नहीं बोलोगे, बोलते हैं ना कुछ तो बोलो मुंह तो खोलो, तो नहीं बोलोगे तो याद रहेगा ही नहीं। तो बोलते हैं अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आपको हमेशा के लिए याद रहे, आप उसको उतनी बार बोलो। अरे बोलो Yes, ना। sir. हाँ, तो बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, इसमें पहला आएगा सॉलिड। पहला क्या आएगा? सॉलिड। क्या आप में से इसका कोई एग्जांपल देगा? सर
बॉक्स, जैसे वुडन कॉपर, बॉक्स, जैसे कॉपर, आयरन, ग्रेनाइट्स सर, जैसे एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, सर जो आइस, जो आप आइस बोलो, स्टोन बोलो, एटसेट्रा। वुड भी डाल सकते हो, वुड भी डाल दो, कहीं आपको ये ना लगे कि इसमें सिर्फ हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं। ये सैंड आएगा क्या? जो जो सॉलिड के फॉर्म में होता है वो सारे के सारे किसमें आएगा? सॉलिड में। मतलब इंटायर मैटर इज कन्वर्टेड इनटू 3 ग्रुप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गेटिंग माय मतलब पॉइंट? सैंड आएगा। ऑब्वियसली आएगा। तो सैंड लिक्विड में पाया जाता है क्या? सैंड लिक्विड में पाया जाता है? नहीं। हाँ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपके पास लिक्विड। पढ़ने में अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है, हाँ या ना? यस सर, पेट्रोल है, वाटर है, ठीक है, केरोसिन। केरोसिन को क्या बोलते हैं? मिट्टी का तेल। यस सर। हाँ, अब धीरे धीरे इसका सर एग्जिस्टेंस, मिट्टी का तेल कैसे बन सकता है? पता नहीं, वो तो ये मुझे भी आज तक पता नहीं, बस बोलते हैं। आई सर थिंक मिट्टी आपने, का तेल कैसे बन सकता है? मैं बता रहा हूँ, जो भी तेल होते हैं ना, अंडर एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडर द अर्थ से ही निकलते हैं, कोई हवा में तेल नहीं बनता, समझ रहे हो? तो ये क्रूड सर ऑयल है, ये कच्चा तेल बोलते हैं, मिट्टी का तेल है, बगैर प्यूरिफाई वाला किया हुआ वाला तेल होता है, जो सबसे ऊपर मिलता है ना, ये यही वाला मिलता है, इसलिए बोलते हैं मिट्टी का तेल। और सबसे ऊपर क्या होती है? अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के लेयर में सबसे ऊपर क्या होती है? मिट्टी तो होती है। अरे बोल। सर ये क्या लॉज है? सबसे ऊपर मिलता है, मिट्टी भी सबसे ऊपर मिलती है, अभी तो मिट्टी मैंने का। बोला, मुझे भी आज तक पता नहीं। तो आपने पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी वाले चैप्टर अपने को याद नहीं है? क्लास 7 देन 8। नहीं सर, नहीं। वो याद है, केरोसिन केरोसिन तो वही चला है है। ना, वही वाटर, वही पेट्रोल, वही केरोसिन, वही कोल टार। अरे याद होगा तो। हाँ जी, तो बेसिकली इसको क्रूड सर ऑयल कोक बोलते भी हैं। था। हाँ, कोक भी था, कोल टार भी था, बिटुमिन भी था। आगे ना, तीसरा इसमें क्या आपके पास? गैस। एक तो वो हाइड्रोजन गैस है, एक वो गैस जो आप लोग फेमिलियर हो, हाँ की ना? अरे हो कि नहीं? यस एक सर। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, हीलियम, और बोलिए नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसेस। क्लियर? अरे बोलो भाई, यस सर। कोई दिक्कत? केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको 2 पार्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 पार्ट मिलेगा। एक तो मिलेगा मिक्सचर। इसका मतलब मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे, इम्प्योर बोलेंगे? सर इम्प्योर। हाँ, तो सब्सटेंस 2 टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अरे हाँ कि ना? प्योर में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस पाया जाएगा। प्योर में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ, उसमें कोई भी गंदगी, कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस, कोई भी गंदगी नहीं पाई जाएगी, इसलिए तो बोलते हैं प्योर। क्या बोला? सर डिस्टिल्ड वाटर। वेरी गुड, डिस्टिल्ड वाटर। इसमें जो नेक्स्ट होगा आपके पास, उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? रिकॉल देम एज प्योर सब्सटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। सर। हेलो गाइस। हाँ हाँ, नेक्स्ट है मिक्सचर। नेक्स्ट है मिक्सचर। अरे मिक्सचर में क्या होगा? जब 2 या 2 से ज्यादा किसी प्रोपोर्शन से मिक्स हो, मिक्सअप हो जाए, that will call as mixture, like sugar and water, like salt and water, like नींबू पानी, बोलते हैं ना नींबू पानी, like शिकंजी, like शरबत, आके ना, like जूस, गन्ने का जूस तो मौसमी का जूस, आके ना, like बनाना का जूस, like खजूरी शेक, like आइसक्रीम का शेक। बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अनुश्री? हाँ
sir. हाँ, पर कितना नाम लो ना। तो मिक्सचर की बात करें तो हियर वी हैव द इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर? तो सब्सटेंस मिक्सचर में आपको दो मिलेगा, होमोजेनस मिक्सचर। अच्छा, जब ये मिक्सचर बनाए, जब आप मिक्सचर को बनाएंगे, जब आप कोई दो डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स अप करेंगे, लाइक आपने नींबू पानी लिया और नींबू लिया और पानी लिया, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको क्या नींबू का पानी अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगा? नहीं सर, एक साथ दिखेगा। दोनों मिक्स हो जाएगा ना। तो जहां पर उनके इंडिविजुअल पार्टिकल्स की, इंडिविजुअल मैटर की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए और आप उसको इजीली सेपरेट ना कर पाओ, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनस। होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम, जीनस का मतलब उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपने क्या किया, शुगर को लिया, पानी में डिसॉल्व किया, शुगर को लिया और पानी में डिसॉल्व किया, उस केस में क्या होगा, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। सर वो डिसॉल्व कहाँ होता है, हमें दिखता ही नहीं है। एक्चुअली जो वाटर है ना, इनके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और इस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, इसलिए कुछ देर बाद आपको शुगर दिखना बंद हो जाता है जब आपको अच्छे से डिसॉल्व करोगे। आगे ना, तो क्या आपको बाद में शुगर दिखता है? नो सर। लेकिन आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बाय हीटिंग, बाय इवापोरेशन। ओम काकड़े, यू कैन गेट इट बाय which process you can get sugar back? Sir, heating. Yes. So try to be in class on Kakade. Yes. I am seeing you are not in the class. You are talking someone to someone else, ना? It is not good for you. तो मैंने क्या बोला, जब शुगर और पानी को मिलाओगे उसमें उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। ऐसे मिक्सचर जहां पर उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लॉस हो जाए उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसॉल्व सब्सटेंस। अच्छा, जब जब सॉल्यूशन बनेगा, जब जब सॉल्यूशन बनेगा उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, लाइक एक आपके पास ग्लास ऑफ क्या है, एक ग्लास है, एक कंटेनर है जिसमें पानी है, अरे क्या है, तो बोलते हैं ना पानी है, पानी पानी है, आगे आई डोंट नो। तो पानी को जिस पे हम किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं, टू विच वी डिसॉल्व एनीथिंग, जिस चीज में डिसॉल्व करते हैं, लाइक शुगर को पानी में डाला, लाइक शुगर को पानी में डाला, लाइक पानी को नॉट पानी को, लाइक सॉल्ट को पानी में डाला, लाइक सैंड को पानी में डाला है। ये पानी है ना, हर जगह जो बार बार पानी 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 आ रहा है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, जो घुलने में हेल्प करे, जो किसी चीज को अपने अंदर घुलाए, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। हाँ कि ना? यस सर। हाँ, और जो घुल जाए, जो मिट जाए, जो मिट जाए, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। अरे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जैसे आप अगर सैंड का मिक्सचर बनाओगे, सैंड और वाटर का, तो क्या वो यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं Sir, नहीं sand होगा। सर dissolve सैंड नहीं को सेटल डाउन। हाँ, कुछ देर के लिए तो आपको लगेगा कि मिक्स हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल सेटल डाउन। इसका मतलब ऐसा ऐसा मिक्सचर जहां पर उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल मैटर की प्रॉपर्टी वो रह जाती है, डिसअपियर नहीं होती है, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजेनस। अरे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो बात ये समझ में आई, ऐसा मिक्सचर जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी रह जाए, उसको बोलेंगे होमोजेनस या हेटेरोजेनस? हेटेरोजीनियस। हेटेरोजेनियस। हाँ, और जिसमें ना रहे होमोजेनियस। होमोजीनियस। इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, आपको हमेशा याद रहने के लिए। एक काम करना, आप एक गिलास ऑफ वाटर लेना, उसमें थोड़ा सा चीनी घोलना, शुगर डिसॉल्व करना, एक गिलास लेना, उसमें थोड़ा सा नमक घोलना। आप उस पूरे ग्लास, उस पूरे कंटेनर से किसी भी कंपोनेंट से एक ड्रॉप ऑफ वाटर लोगे ना, तो हर जगह का टेस्ट एक ही आएगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। वहीं पर अगर सैंड वाला मिक्सचर लोगे, जो वाटर का जो लेवल है ना, जो कि गंदगी की थिकनेस है, वो नीचे से जो थिकनेस कम होती है, मतलब नीचे ऊपर आते आते तो थोड़ा उसका जो प्योरिटी थोड़ा बढ़ेगी, नीचे आते आते जो डस्ट पार्टिकल वो थोड़ा ज्यादा रहेगा।
इसका मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. कोई Yes, sir. दिक्कत? No, sir. हाँ, तो इसमें पहला बात करेंगे होमोजीनस। क्या बात करेंगे? अरे बोलो। Homogeneous. होमोजीनस मिक्सचर। सर एक डाउट है हाँ पूछिए बेटा। सर, आपने कहा कि अगर शुगर सोल्यूशन को पिएंगे तो फिर वो उसका टेस्ट इक्वली आएगा, तो फिर वो तो सोल्यूशन हुआ ना, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हुआ। हाँ ओके, सर। आप मेरी बात समझे नहीं। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर। यस और नो? Yes, sir. अरे सॉल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर ही तो है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, लाइक अगर हम नींबू की शरबत बनाते हैं, उसमें नमक मिलता है, चीनी मिलता है, नींबू मिलता है, पानी मिलता है। दीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? जब जब किसी सॉल्वेंट पे किसी चीज को हम मिक्स करते हैं और वो थ्रूली मिक्सअप हो जाता है, दैट इज द सॉल्यूशन ना। जो ना हो वो हो गया हेट्रोजेनस मिक्सचर। अरे बोलो ना। जो Yes, थ्रूली sir. मिक्सअप हो जाए, लाइक जूस। जूस क्या एक सॉल्यूशन है? अरे बोलो। यस। बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ सर। Yes. तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होगा, इसको हम लोग लेटर लेक्चर्स में इसको अच्छे से एलाबोरेट करेंगे। तो होमोजेनस में आप एग्जांपल लिखेंगे शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। सर जब चीनी का नाम आया तो सॉल्ट का भी नाम ले लीजिए। चलो ठीक है, ले लिया, तो हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। अरे बोलो। अरे बोलो। Yes, sir. हाँ सर बोलिए। आपके पास एयर है, एंड एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। डू यू नो? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस होती है। अरे होती है कि नहीं? हाँ Yes, sir. हाँ, जब एयर है तो सेलाइन वाटर, तो मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन इसी में आ गया, एटसेट्रा। ऑल दीज आर द होमोजेनस मिक्सचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो चेक। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा है आपका इसका हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस मिक्सचर। ये सारा नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है ना? हेटेरोजेनस क्या बोलेंगे? जहां पर उसका इंडिविजुअल कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टी लॉस ना करे, और आपको आप सिंपल प्रोसेस फिजिकल मेथड से, लाइक इवापोरेशन, लाइक मेल्टिंग से आप इसको सेपरेट कर लो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। अरे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सॉयल है। क्या है? सॉयल में अलग अलग पार्टिकल्स होते कि नहीं होते हैं? लाइक होते हैं वी sir. हैव ब्लड, like we have blood, like we have dirt, etc. All these are the heterogeneous mixture. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट बात करते किसकी? सर Pure हमारी भी बात कर लीजिए। substance. तुम्हारी करेंगे पर अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस जिसमें जिसमें किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस रहता है। क्लियर है? तो प्योर सब्सटेंस में आपके पास मिलेगा कंपाउंड। क्या मिलेगा? अरे बोलो, क्या मिलेगा? कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स में क्या क्या होंगे बताइए? अरे बोलो। एलिमेंट्स। जैसे कि मतलब कई सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। Compounds बनाता है. हाँ, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हो गया आपके पास वाटर। क्या हो गया? Hydrochloric acid. जैसे आपके पास हो गया सॉल्ट, जैसे आपके पास हो गया शुगर, जैसे आपके पास हो गया, किसी ने कहा HCl। जब HCl आता है तो H2SO4 के बारे में बात कर लेते हैं। अरे हाँ कि और ना? सर NaOH. हाँ, आप अपने एग्जांपल में लिख सकते हैं, NaOH लिख लो, कैल्शियम सल्फेट लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो, CO2 लिख लो। ये सब के सब क्या है? कंपाउंड्स में आएगा। हाँ कि ना?
NH of NH4Cl लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब प्योर सब्सटेंस में ही लिखना। अरे हाँ कि ना सिद्धेश? अरे गेट में पॉइंट बेटा, बेटा का नाम लेते बेटा का कैमरा बंद हो गया, ये गलत बात है, अनफेयर। हाँ सिद्धेश, एवरीथिंग Yes, ओके? sir. हाँ, आगे बढ़ो क्या? Yes, sir. हाँ, प्योर सब्सटेंस में एक अपना कंपाउंड हो गया, दूसरा होगा एलिमेंट्स। तो मैं एलिमेंट्स को नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? हेलो स्टूडेंट्स, Yes, Yes, sir. sir. फास्ट तो नहीं हो रहा है? No, नहीं sir. No, सर। sir. फास्ट लगे तो बोल सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो इसमें आप क्या था वो, प्योर में से एक कंपाउंड हो गया, दूसरा लिखिए एलिमेंट्स। दूसरा क्या लिखिए? एलिमेंट। एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं। लाइक अगर आपने बात किया गोल्ड की, तो गोल्ड के जो बार होगा ना, उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स, सारे के सारे मैटर क्या होंगे? गोल्ड के होंगे। क्लियर है हाँ या ना? हाँ सर। दूसरी बात, आपने बात किया आयरन का, तो आयरन के उस रॉड में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल, सारे के सारे नॉट मॉलिक्यूल, सारे के सारे जो मतलब कि उनके इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे, वो किसके होंगे? आयरन के होंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ये क्या है? गोल्ड है। क्या है? अच्छा, गोल्ड का सिल्वर AU। सिंबल 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 क्या होता है? एवरीवन, सबको अपना अपना आंसर दीजिए। जरूरी नहीं कि जो बोल रहा है वो सही हो, जरूरी नहीं कि बोल रहा है गलत हो। AU. AU। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? सब बोलिए। AU सर सर। Sir, AU। AU. जानवी Yes, sir. क्या हो बताइए? गोल्ड का सिंबल? AU. AU। व्हाट अबाउट स्नेहा? Sir, AU. आकाश? Sir, AU. अर्णव? AU सर। ओम काकड़े? Sir, AU. हाँ, मतलब जो सिल्वर होता है वो होता है Ag, तो हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं। तो जब जब आप किसी भी सब्सटेंस को ऐसे देखोगे, मतलब अगर बात है वो प्योर की ना, अगर एलिमेंट्स की, तो उसका इंडिविजुअल पार्टिकल जो, मान लो इसका स्मॉलेस्ट जो रिपीटिंग यूनिट है वो जो ये है, तो वो हमेशा क्या होगा? वो हर जगह AU ही होगा, AU होगा, AU होगा। इस तरीके से सारे पार्टिकल से होगा, कोई भी दूसरा पार्टिकल Ag के फॉर्म पे नहीं होगा। मतलब हर जगह AU आपको मिलेगा। बोलेगा हर एक पार्टिकल बोलेगा कि हम AU हैं, हम AU हैं। मतलब यहाँ पूछो तो AU, यहाँ पूछो तो AU, यहाँ पूछो तो AU, मतलब हर जगह AU मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट Yes. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, तो मालूम ये चला, मालूम क्या चला? जंगल में शेर रहता है, ठीक है ना? तो एलिमेंट्स में आपके पास क्या आएगा? मेटल्स आएंगे। एलिमेंट्स में और क्या आएगा बताइए? Non-metals. मेटल्स, मेटल्स में कौन आएगा? जैसे कि सोडियम, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि सिल्वर, अरे हाँ कि ना, जैसे कि कॉपर, और बोलिए, Fe. जैसे कि आयरन, जैसे कि कॉपर। सर हाइड्रोजन। ओ सॉरी 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 सॉरी। Sir, copper 2 बार. कॉपर 2 बार लिख दिया, चलो एक बार मैंने इरेज कर दिया। बोलिए। Sir, सर Mg. एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर वाटर भी होगा क्या एक एलिमेंट्स में? वाटर? नहीं वो तो कंपाउंड होगा ना। वाटर बोले बेटा? ओके सर। हाँ वाटर में सर। क्या? यहाँ पर वाटर में कंपाउंड देख, होगा। ऑक्सीजन भी आ रहा है, हाइड्रोजन है, ये तो कंपाउंड में चला गया, ये तो मॉलिक्यूल्स में चला गया। मॉलिक्यूल्स क्या ओके होते सर। हैं? जहां पर कई सारे एटम्स मिल करके एक ग्रुप ऑफ एटम, एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आगे आएगा, आपका तीसरा चैप्टर में आएगा एटम्स के बारे में, तो वहां आपको अच्छे से बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज में MN सर आपको बताएगा कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। Titanium.
टाइटेनियम, तो तुमने टाइटेनियम बोला, मैंने जिंक लिख दिया। इज एवरीथिंग सर ओके? टंगस्टन, सर वैनाडियम, सर हाँ, स्कैंडियम, स्कैंडियम, यूरेनियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, सर मैग्नीज, एंटेनियम, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, जिंक। ठीक है। हाँ, जितने भी सारे एलिमेंट है आप उनको मेटल्स वाले इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। अच्छा, एक खास बात पता है क्या है? जितने भी मेटल्स है ना, वो लेफ्ट साइड लाई करते हैं। पूरा का जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है, मुझे थर्ड एम्पायर में समझना कि मैं रिव्यू के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे वही करता है। जो आपका पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसका जो लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट्स है, लेफ्ट साइड वाला, वो सारे के सारे क्या है? मेटल्स। मेटल्स, जो राइट मोस्ट वाला है वो क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. इसमें आपके पास क्या है? नॉन मेटल में क्या क्या बताइए? जैसे कि Hydrogen, oxygen. सल्फर आ गया, सर आर्गन, कार्बन, सल्फर, सर कार्बन, आर्गन, और आर्गन, क्या? सल्फर, krypton, सर आर्गन, फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, krypton, हाँ, helium, ऑक्सीजन हो गया, radon, हाइड्रोजन हो सर गया। Helium. क्या बोला? हीलियम। हाँ sir. ठीक है, सर नियॉन, ठीक है, उसको भी ले लो। krypton, सर आर्गन, सर फॉस्फोरस, Chlorine. सर आर्गन। सारे नोबल गैस। आप नोबल गैस किस में मत डालो बेटा, नोबल गैस की अलग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आप एक ने बोला तो सब नोबल गैस के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, एटसेट्रा। नेक्स्ट जो आपका तीसरा है वो है मेटलाइट। वो क्या है? मेटलाइट्स, जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो। जैसे कि बोरोन हो गया, जैसे कि क्या हो गया? बोरोन हो गया। जैसे कि क्या हो गया? आर्सेनिक हो गया, ठीक है। जैसे कि silicon, और सिलिकॉन हो गया, वेरी गुड। जैसे कि germanium, जर्मेनियम, ठीक है ना, सर बेरकेलियम, जर्मेनियम। सर मुझे याद sir, नहीं है। antimony, एंटीमोनी, सर एक और था ना बेरकेलियम करके, बेरलियम कुछ तो था वो नीचे का होगा। तो ये सब के सब क्या होगा? एस बी एंटीमोनी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? मेटलाइट्स है। क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? sir, 2 ही और बचे उसके बाद मेटल हाइड्रोजन। कोई बात नहीं, आप अपने तरफ से उसको ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। कोई दिक्कत? नो सर।